Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, we discussed the concept of derivatives of function of single variable. Uh, we are proceeding this topic further. और इसके लिए we are discussing some example. Then we will go to techniques of differentiation. Mainly, our topic of discussion today is techniques of differentiation. So for this, we are discussing a couple of examples. In this example, we are required to find the derivative of given functions. इसमें सबसे पहला part we have give the function given to us is f of x is equals to x cube, and we know to find the derivative of a function we have this formula which is written in red color. You can see that in this formula uh, f of x is given to us. We only required f of x plus h. Then we put the value and simplified this and apply the limit and get the derivative of function. So for value of function, we know this can be written as the function given to us is f of x is equals to x cube, and in agar let's say we say this as equation number 1, and we in equation 1 we required only value of the function f of x plus h. And we know it is very simple to find. We can write f of x is equals to x cube, and we want to find f of x plus h. And for this, we will replace x by x plus h. So it will become x plus h to the whole cube. So finally, equation number 1 will become f prime of x equals to limit h tends to 0 x plus h to the whole cube minus x cube divided by h. We will apply the formula of a plus b to the whole cube, and we know the formula of a plus b to the whole cube. This is the formula of a cube plus we required a plus b का whole cube का formula. इधर मैंने गलती से a cube plus b cube का formula लिख दिया. A plus b के whole cube का जो formula है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब, और इधर हमें रिक्वायर्ड है इधर ये वाला फॉर्मूला. वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. So we are going to apply this formula here. We will get x cube plus h cube plus 3x square h and plus 3x h square and minus x cube divided by h. We know before applying limit we have to simplify this as much as possible, and in simplification it is clearly, you can clearly see that x cube and x cube will be cancelled, and in remaining terms we can take h as a common. In some terms h can be taken as common. In fact, h can be taken as common in all these three terms. So we are going to take common from these terms. H square plus 3x square plus 3xh whole divided by h, and this h will be cancelled. So we will apply limit here. So after applying limit, it can be the limit is applying only on h. So where h is you can see where h is there, then you will apply limit here, and h tends to 0 means you will put the value of h as 0 when applying limit. So this first term will be 0 and the last term will be 0, and only we are left with 3x square. So what is this thing? This is f prime of x, 3x square x or 3x square x, or this is this is the derivative of given function. What is this? This is derivative of given function f of x is equals to x cube. हमने यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव निकाला है. सिमिलरली हम यहाँ पे और फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं, एंड कुछ और फंक्शंस के भी हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं. डेट से
we will find derivative of f of x. क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम ही है, फिर वही बोला जा रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इसमें अब मैं आपसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव मांग रहा हूँ। तो साइन एक्स के डेरिवेटिव निकालने के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला जो आप ऊपर यूज किया आपने, और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको यूज किया, इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था लास्ट लेक्चर में हमने। तो दिस इज द फार्मूला, और इस फार्मूले में एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, और इधर से देखा जाए इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर फाइंड की जाए, then it will be equals to sine x plus h. So if I say this as equation number 1, and this is equation number 1 then become f prime of x equals to limit h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय h. And we know the formula of sine a plus b or sine alpha plus beta. We know the formula of sine alpha plus beta. I am writing that formula here. This is the formula of sine alpha plus beta, and we are applying this formula here. When we apply this formula here, we will get limit h tends to 0, and sine here x is ऐसे ही लिखा हुआ जैसे this is alpha and h is like beta here. So this will become sine x cos h plus cos x sine h minus sin x whole divided by h. So what will we do now? हम इधर क्या कर सकते हैं, हम इधर we can take common sin x. बस एक चीज है जो कि यहाँ पे होती हुई लग रही है कि sin x can be taken as common from first and last term. So we are going to take common from these two terms. Limit s tends to 0. Sin x, when you take sin x as common from these two terms, we will get cos h minus 1 or plus cos x sin h. I can write this as मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर दिया. So we know from the rules of limit, this limit will be applied to both the terms separately. ओके, तो इधर जो है मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड sin x एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप. हम ये कह रहे हैं कि sin x इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, तो sin x को आप लिमिट्स के बाहर लिख के लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h. ओके, इसी तरह से सेम इसी तरह से यहाँ पे भी सेकंड टर्म में भी cos x इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, मतलब इसमें लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती है तो मैंने उसको बाहर लिख दिया, तो साइन h ओवर h. सो अगर यहाँ पे देखो तो व्हाट इज दिस लिमिट, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ फर्स्ट टर्म में, तो जब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी नो. और इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ लिमिट्स दैट दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 0. ये कैसे होती है, हमने इसका प्रूफ एक तरीके से टेबल को यूज करके हमने इसका प्रूफ डिस्कस किया है कि बाय यूजिंग टेबल हमने इसको प्रूफ किया है. वैसे और भी इसको प्रूफ करने के और भी मेथड्स है, लेकिन पर्टिकुलरली हमने टेबल से ये बात प्रूफ की है कि ये जो लिमिट है, दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 0 होती है. तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 0. ये बात मैंने कैसे लिखी, मैं ये कह रहा हूँ कि वी नो द फैक्ट that when limit h tends to 0 and cos h minus 1 upon h, this limit is equals to 0. और इसी तरह से हमने एक और लिमिट प्रूफ की है
वो ये प्रूव किया था कि साइन एच अपॉन एच पे जब लिमिट जीरो होती है तो दिस इज टेंडिंग टू वन, मतलब ये फंक्शन टेंड्स टू वन व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। ये बात भी हमने बाय यूजिंग टेबल प्रूफ किया। और भी मेथड्स है इसको प्रूफ करने के, लेकिन बहरहाल अभी हमने जो वर्किंग किया हमने बाय यूजिंग टेबल हमने इनको प्रूफ किया। तो ये हमारे पास cos x हो गया और sin h अपॉन h की लिमिट इज वन। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव हमारे पास फाइनली f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x बचा है। तो ये हमने क्या किया, cos sin x का डेरिवेटिव निकाला है, जो कि हमने देखा कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ईच trigonometric functions separately. इसी तरह से there are 6 inverse trigonometric function, we can find the derivatives of those 6 inverse trigonometric function in similar fashion. So हमारे पास इस तरह से एक तरीके से पूरा टेबल बन जाता है, पूरा फॉर्मूलाज का एक चार्ट बन जाता है। आप एक एक चीज मैं यहाँ पे लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ कि जितने भी आपको पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से मैंने सिर्फ एक लेक्चर में डिस्कस किया। रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव आप खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि इनके डेरिवेटिव्स क्या आ रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला लिस्ट जनरेट हो जाती है। आपने देखा फर्स्ट पार्ट जो हमने किया एक्स क्यूब के ऊपर मैंने पर्टिकुलरली किया, लेकिन इधर मैं एक्स की पावर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने का बोलूँ, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव निकालने का बोलो, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप के डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला लिस्ट हमारे पास जनरेट हो जाती है कि डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो मैं अभी फॉर्मूला लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूल्स एंड डिफरेंशिएशन के हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं फॉर्मूला लिस्ट के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो जो मैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास देयर आर 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और इनमें से वेरी बेसिक से रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। देखें, ये ख्याल रखें कि लिमिट्स के रूल्स में और इसके रूल्स में एक आध जगह पे थोड़ा बहुत फर्क है। वो मैं अभी बताता हूँ फर्क कहाँ पे आता है। देखिए, अगर आप कभी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल लो, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप कभी निकालो तो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है जिसको हम सम रूल भी कहते हैं। सम रूल कह लें, डिफरेंस रूल मैं इसके अंदर ही बात कर लेता हूँ, अलग अलग लिखना बेकार है, क्योंकि दोनों केसेस में अप्लाई हो जाता है। तो रूल नंबर 3 इज दिस, पहले मैं रूल 3 को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर रूल नंबर 2 पे आता हूँ। रूल 3 ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, आप उन दो फंक्शंस का अगर ऐड हो रहे हैं उसका आपको डेरिवेटिव लेना हो। डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डी बाई डी एक्स। द मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स एक तरीके का ऑपरेटर है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, जो कि हम पिछली क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर ये डेरिवेटिव लिया जा रहा है दो फंक्शन जो कि ऐड हो रहे हैं, तो आप पहले दो फंक्शंस को ऐड करें, उसका फिर डेरिवेटिव लें, या दोनों फंक्शंस का सेपरेटली डेरिवेटिव लेके उसको ऐड करें, एक ही बात होती है। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, यानी कि कोफिशिएंट के तौर पे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये कोफिशिएंट जो है डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकाल लें, फिर डेरिवेटिव लें। मतलब ये कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको फिर कोफिशिएंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव लें। दोनों की मीनिंग साथ सेम। ये हमारे पास फर्स्ट 3 रूल्स हैं, और रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि आपके पास होता ही है कि अगर आपके पास रूल नंबर 4 ये कहता है कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल कहलाता है ये। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, ये आपको प्रोडक्ट रूल सिखाता है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप सिंपल ये करो कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दो, सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स को मैं सेकंड फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, और एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन का नाम दे रहा हूँ।
एफ ऑफ एक्स रिमेन्स एज इट इज और जी ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये एक टर्म हो जाएगी। फिर आप जो है प्लस का साइन बीच में लगाए, प्लस फिर सेकंड फंक्शन का एज इट इज रहने दें, फिर आप सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। और इसी तरह फिफ्थ रूल इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल, मतलब ये यू अपॉन वी के फॉर्मूले से लोग ज्यादातर इसको याद करते हैं। एफ ऑफ एक्स को यू का नाम देते थे, जी का ऑफ एक्स को वी का नाम दे देते हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर फॉर ए फंक्शन का डेरिवेटिव, और डिवाइड में होल डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका जस्ट स्क्वायर आ जाता है। तो ये रूल्स हैं, इनको आप जहन में बिठा लें, मतलब ये कि आप एक तरीके मैं कहूंगा कि इनको याद कर लें ताकि आप कोई भी सवाल डेरिवेटिव का है आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, आपको बार बार फॉर्मूला लिस्ट ना खोलनी पड़े। ये फॉर्मूला लिस्ट आप एक जहन में बिठा लेंगे तो आपको इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इनका रूल्स को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको कुछ फार्मूलाज को एक तरीके से ड्राइव करवाया है, कुछ फार्मूलाज आपको ऑलरेडी डेवलप करवाया, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको दिखाया आपको कि पूरा एक तरीके से डिराइव किया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आप इसी तरह से निकाल सकते हो। तो हमारे पास एक पूरी फॉर्मूला लिस्ट जनरेट हो जाती है। हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाला, मैंने कहा आप अपने होमवर्क के तौर पे एक्स स्क्वायर का वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव खुद से निकाल सकते हो। तो ये पूरी हमारे पास एक फॉर्मूला लिस्ट जनरेट हो जाती है। ये फॉर्मूला लिस्ट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस फॉर्मूला लिस्ट के बारे में यही कहूंगा कि ये आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव का जब भी हम बात जिक्र करें आपको प्रॉब्लम ना हो। हम बार बार इधर फॉर्मूला लिस्ट नहीं शो करेंगे, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यू हैव मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज। तो मेरे पास सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन u की पावर n, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव लेना हो, तो इसका तरीकेकार जिस तरह आपने देखा था एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आया था, 3x² आया था। मैं आपने बोलूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, वो आएगा 2x। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है कि पावर नीचे उतरती है, पावर में एक कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में पावर 3 है तो पावर नीचे उतरी, पावर में एक कमी हो गई यानी कि 3x² आ गया। तो ये फॉर्मूलाज है, ये आप इनको मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। साइन का डेरिवेटिव सबसे पहले इधर लिखा हुआ वो हमने प्रूफ किया, कॉस होता है। इसी तरह से कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन होता है, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, और इसी तरह से कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे पास देयर आर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप उनके भी फॉर्मूलाज हैं, इनको भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपके सामने मैंने शो कर रहा हूँ, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास और भी फंक्शंस है, ये पूरी लिस्ट है। आप कॉट इनवर्स का भी डेरिवेटिव, लॉग फंक्शन है, लॉग एलएन फंक्शन, एलएन एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो वो 1/x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इसको मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। Okay, let's do some examples of how to implement these formulas and rules जो हमने डिस्कस किए डिफरेंशिएशन के, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको, लेकिन बात वही है कि आप जिसकी खुद से जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 + cos x का डेरिवेटिव निकालें। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो एक रूल है क्वेश्चन रूल के नाम से, वहाँ यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है यू अपॉन वी का फॉर्मूला से, जिसे आप याद करते हैं। साइन एक्स ऐसे ही है जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये 1 + cos x, ये पूरा ऐसे ही है जैसे यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ। वी नो द रूल, इसको चाहे तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप इसको नाम यू रख लें,
u अपॉन v के फॉर्मूले से भी कुछ लोग याद करते हैं। तो dy dx of u upon v, we know the formula of u upon v. This formula is something like this: v into derivative of u minus u into derivative of v divided by v का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? ऑब्वियसली जो गिवन फंक्शन है उसी को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है आपका क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो डिनोमिनेटर वाली चीज है, डिनोमिनेटर इज वी और वी, 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज। फिर u का डेरिवेटिव, u में साइन एक्स लिखा है और बात यही है कि इसको अगर फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है माइनस फॉर्मूले का। फिर u एज इट इज, u इज योर साइन एक्स एंड v का डेरिवेटिव इज 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव देखें, 1 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास माइनस साइन एक्स हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर होता है, v इज योर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव निकालना था, वो डेरिवेटिव निकल चुका है। अब बस सिंप्लीफाई करना है। मेन काम यहाँ पे हो चुका है, मतलब डेरिवेटिव निकल चुका है। अब बस सिंप्लीफाई करना है। तो इस सिंप्लीफिकेशन इसकी ये हो गई, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर से एक 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आया। दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी वेरियस एग्जांपल्स हैं जो आप खुद ही अपने प्रैक्टिस के लिए जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन बात इन क्वेश्चन से पहले मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि डेरिवेटिव्स के रूल्स और इनके फॉर्मूलाज को अगर आप मेमोराइज कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए। आगे जाके हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे हम उसमें डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लेंगे। हम पूरा बार बार यहाँ पे लिस्ट को खोल के यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव का जो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल है, अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए फर्स्ट और सेकंड रूल, वो ये कहता है कि आपका ये जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट के तौर पे जो चीज लिखी है ये आपके डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये मैंने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अप्लाई किया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 फ्रॉम रूल नंबर 1 ये अप्लाई किया। x की पावर n का डेरिवेटिव फ्रॉम लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज यू कैन सी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर एंड अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर दी, सॉरी, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर था, सॉरी मिस्टेक। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 7 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स 1। तो बस हो गया सिंप्लीफाई, बस करना डेरिवेटिव निकालना, तो निकाल लिया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह के और भी वेरियस क्वेश्चंस हैं जो आप
खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स किए हैं। आप लोग इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स कीजिएगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और फ्रॉम एनी बुक, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव की उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे हमारे पास ये बहुत ज्यादा इसका डेरिवेटिव्स का बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। आपके डेरिवेटिव्स अगर स्ट्रांग होंगे तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है इंटीग्रेशन का, यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स का, तो आपको उसमें फिर आसानी होगी। अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपके वीक होंगे तो फिर आपको आगे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ये करनी पड़ेगी आपको। तो इसको आप लोग कोशिश करें जितना ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हैं इनके मैक्सिमम पॉसिबल इसको सॉल्व करें ताकि कॉन्सेप्ट आपके बने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।